Hello students. In this video we shall discuss about the nature, or we may say the behavior of characteristic roots for special type of matrices like symmetric matrices, Hermitian matrices, skew Hermitian matrices, unitary matrices, idempotent matrices, and some properties of characteristic roots of or eigen values. How the behavior of characteristic roots depends on the matrices. So for it, let us have our first result, our first, you may say, the theorem 1. The characteristic root, in this theorem we prove the characteristic root or eigenvalue of a Hermitian matrix are real. इसमें हमको प्रूव करना है कि यदि हमारे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और हम उसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो वो सभी कैसी आएगी, हमेशा रियल आएगी। तो आइए इसको कैसे प्रूव करते हैं। आइए, हमने एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ली, लेट ए बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स और इसकी हम एक आइगन वैल्यू लेते हैं और फिर हम उसको दिखा देंगे कि वो रियल है। लेट लैम्डा बी any eigenvalue of A, and अब ए लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है तो लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स भी होंगे, तो हमने उनमें से एक आइगन वेक्टर लिया एंड कैपिटल एक्स बी एन आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग to this eigenvalue lambda. Now, by the definition of eigenvalue and eigenvector of a matrix A, since lambda is an eigenvalue of A and capital X is an eigenvector corresponding to lambda, then by the definition AX is equal to lambda x. Now multiply both sides by transpose conjugate of capital X, that is x theta. So just we multiply by x theta on both sides and we get x theta ax is equal to x theta lambda x. Now you see this is a scalar, so it comes out from between the two matrices. X theta ax is equal to lambda x theta x. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। Now we take the transpose conjugate of both sides, then taking transpose conjugate of both sides. तो क्या हो जाएगा, हमने दोनों साइड का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, थीटा लिया, तो क्या बन जाता है, एक्स थीटा ए एक्स थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा एक्स थीटा. Now we will apply the properties of transpose conjugate. What the properties are? एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा. इसी के अकॉर्डिंग यदि हम यह तीन मैट्रिक्स ए बी सी ले तो ए बी सी थीटा इज इक्वल टू सी थीटा बी थीटा ए थीटा. और दूसरी प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी है वो है के ए
theta is equal to k conjugate a theta, where k is any scalar and a is any matrix. Now we apply these two properties here, then what we get? We get this is a, b, c. Therefore we take theta individually and their order is reversed. Therefore we get x theta, a theta, x theta, theta, and here apply this property k a theta. तो जब हम ये k हो, ये इसको हमने ये एक स्केलर k हो गया और इसको हमने सब पूरी मैट्रिक्स को यदि a मानकर करते हैं तो ये बन जाता है लैम्डा कॉन्जुगेट, और ये बनता है x थीटा, x का थीटा। इसको हमने a मानकर किया और इसको k मानकर ये प्रॉपर्टी आपने यहां पर लगाई। अगेन इसमें आपने फिर से ये ए बी थीटा इक्वल टू बी थीटा ए थीटा ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो यहाँ ये ए और ये बी हो गया, इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये बन गया लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा थीटा। नाउ अगेन यू नो दैट ए थीटा थीटा इज इक्वल टू ए। नाउ अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी a theta theta is equal to a, you get x theta a theta, this is x theta theta, it becomes x is equal to lambda conjugate, this is lambda conjugate x theta, this is x theta theta, it again becomes x. Now this implies we call this equation 2. Now from equation 1 you see x theta ax is equal to lambda x theta x, and from 2 you see the same expression. Oh sorry, now we will use the property of the matrix A, that it is a Hermitian matrix. Since A is Hermitian, therefore this A theta is equal to A. So therefore we write down A theta equal to A. We get x theta ax is equal to lambda conjugate x theta x. Why? Since A is Hermitian, implies A theta is equal to A. Therefore we denote this equation by number 2. Therefore now you see from equation number 1 and equation number 2, x theta ax is equal to lambda x theta x, and from this the same expression x theta ax is equal to lambda conjugate x theta x. Now from 1 and 2 we get lambda x theta x is equal to lambda conjugate x theta x. Now this implies lambda minus lambda conjugate x theta x is equal to 0. Now again you note that this capital X, this x is a characteristic vector, that is an eigenvector, so it cannot be a zero vector. Now since कैपिटल X इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि हम जानते हैं कि जितने भी आपके आइगन वेक्टर्स होते हैं ये सभी नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं, इस कारण ये X क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और जब X नॉट इक्वल टू 0 होगा तो X थीटा भी क्या होगा आपका, नॉन जीरो. Therefore this is non-zero, this is non-zero, while this product is equal to 0, so this condition, so this equation implies this equal to 0. So lambda minus lambda bar is equal to 0, and this implies lambda is equal to lambda bar, and which is the condition for a number to be purely real. जब किसी नंबर का कॉन्जुगेट उसी नंबर के इक्वल होता है तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर इज प्योरली रियल. सो दिस नंबर लैम्डा इज प्योरली रियल. सो दिस इंप्लाई लैम्डा इज प्योरली रियल. हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था. तो इस तरह से हमने देखा कि जो हर्मिशियन मैट्रिसेस होती है उनकी सभी आइगन वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, प्योरली रियल होती है. अब यहीं पर हम यदि बात करें, यहीं पर यदि हम बात करें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस की,
फॉर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, तो फॉर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस all eigenvalues are either 0 or purely imaginary. स्क्यू हर्मिशन की सभी आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो या तो जीरो होगी उनमें से, या क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी होगी। इसको देखने के लिए आपने अभी जो एग्जाम्पल किया, यदि इस एग्जाम्पल को ही आप प्रोसीड करें तो यहां पर जो आपने देखा, हम इसी एग्जाम्पल को सेम मैनर से प्रोसीड करते हैं। एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ले लेते हैं, लैम्डा उसकी एक हम आइगन वैल्यू ले लेते हैं, लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू ले लेते हैं, एक्स उसका आइगन वेक्टर ले लेते हैं, तो यही सेम कंडीशन बनती चली जाएगी आपके पास में। फर्स्ट कंडीशन यही होगी, फिर हम उसका क्या ले देते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। सिमिलरली हम प्रोसीड करते हैं और हम यहाँ इक्वेशन 2 तक आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स हर्मिशन के कारण हमने इसमें हर्मिशन की प्रॉपर्टी रखी ए थीटा इक्वल टू ए, तो हर्मिशन की डेफिनेशन से हमने ए थीटा को क्या रखा, ए। लेकिन अब हमारी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशन है, तो हम इसी प्रूफ में यहां पर आकर ए थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस ए। तो नाउ ए थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस ए, एंड सो वी गेट तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, यहां आप देखते हैं यहां पर एक्स थीटा ए थीटा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स है। तो इसमें यहां पर क्या हो जाएगा, हम ए थीटा की जगह क्या रखेंगे अब, माइनस ए। तो माइनस ए रखेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल टू दिस, माइनस एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स। अब हमारी इक्वेशन 2 ये हो जाएगी। अगेन हम इक्वेशन 1 से एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा एक्स, ये वैल्यू उठाकर हम यहां रख देते हैं यहां पर। तो ये बन जाता है आपके पास में माइनस लैम्डा एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स। और इससे आ जाता है, आप देखते हैं कि लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू 0, विच implies lambda plus lambda conjugate is equal to 0. Why? Since again x is an eigenvector, so x is not equal to 0, and x is not equal to 0 means x theta is not equal to 0. So lambda plus lambda conjugate is equal to 0, and this is the condition for a number which is either 0 or purely imaginary. तो इसका मतलब है ये कंडीशन आप देखते हैं, ये कंडीशन किसकी है, देखिए जब हम किसी नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर रहे हैं और वो 0 आ रहा है, तो या तो वो नंबर 0 है या फिर वो नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है। ये कंडीशन आपकी सी है। तो यहीं पर क्या बन जाता है आपके पास में, लैम्डा इज प्योरली इमेजिनरी। Therefore, for skew Hermitian matrices, an eigenvalue of skew Hermitian matrix is either 0 or purely imaginary. Now we prove more result. Now we prove that the eigenvalues of a unitary matrix are of unit modulus. क्या प्रूव करना है हमको, कि यदि हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसकी समस्त आइगन वैल्यूज का मॉडुलस यूनिट होगा। यूनिट मींस 1 होगा। उसकी कोई भी आइगन वैल्यू होगी तो उसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तो आइए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखिए हम लेते हैं एक यूनिटरी मैट्रिक्स, लेट ए बी a unitary matrix, let A be a unitary matrix, then
by the definition of unitary matrix, A theta A is equal to identity. This is the definition of unitary matrix. Now हमें दिखाना है कि इसे कि कोई भी आइगन वैल्यू ली जाए तो उसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसे की एक आइगन वैल्यू लेते हैं। सपोज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड कैपिटल एक्स एन आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalue lambda. Then by the definition of eigenvalue and eigenvector we have ax is equal to lambda x. Now take the transpose conjugate of this equation. Ax theta is equal to lambda x theta. Now again apply the property of this transpose conjugate. ax theta means ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा जब हम इनका अलग अलग थीटा लेंगे। तो x थीटा a थीटा इज इक्वल टू, यहां पर हम के ए थीटा इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट ए थीटा, वो जो प्रॉपर्टी है आपकी वो यहां पर अप्लाई करेंगे। लैम्डा, ये उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा. This is equation 2. Now multiply this equation and this equation now by 1 and 2. इन दोनों को क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करिए आप इसके, तो ये भी इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा. तो क्या बन जाता है, देखिए यहां पर एक्स थीटा ए थीटा ए एक्स, ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड क्या बन जाती है आपकी, लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा इनटू लैम्डा एक्स. नाउ apply the associative property of the product multiplication of matrices. X theta, this is a theta, a x is equal to lambda स्केलर है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो ये इनके बिटवीन इन मैट्रिसेस के बीच से बाहर आ जाएगा. तो ये बन जाएगा लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा, यहां पर बनेगा x थीटा x, एंड दिस इम्प्लाई this imply. Now you see that A is unitary matrix, so A theta A is equal to identity. So here we put A theta A is equal to identity from this. यदि हम इसको इक्वेशन 1 लिखे तो हम यहां पर इक्वेशन 1 का यूज कर देते हैं, तो हमें मिलता है x थीटा आइडेंटिटी x इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा मीन्स मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर, एंड x थीटा x, यहां पर हमने इक्वेशन 1 का यूज किया बाय 1. ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. नाउ यू नो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो इट बिकम्स एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स थीटा एक्स. नाउ आपने इसको इस साइड लिया, एक्स थीटा एक्स और माइनस मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज 1 माइनस मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू 0, एंड अगेन you see this x is not equal to 0. Since x is not equal to 0, so x theta is not equal to 0. So this imply ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, जबकि प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इट मीन्स ये क्या होगा आपके पास में 0 होगा. 1 माइनस मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज मोड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1. इस प्रकार हमने देखा कि हमारी जो मैट्रिक्स ए थी उसकी जो हमने आइगन वैल्यू लैम्डा ली थी, वो आइगन वैल्यू का मॉडुलस क्या हो गया आपके पास में 1 हो गया. तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एवरी आइगन वैल्यू ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑफ यूनिट
modulus. Now we take another problem. The eigenvalue in this problem, we prove the eigenvalues of an idempotent matrix are either 0 or unity. Unity means 1. यहां पे हमको शो करना है कि यदि हम कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लें और उसकी हम आइगन वैल्यूज निकाले तो या तो 0 आएगी या 1 आएगी. कोई भी आइगन वैल्यू होगी वो केवल 2 ही वैल्यू रख सकती है, या तो 0 या 1. किसके लिए? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए. अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है जो जिसका यदि हम स्क्वायर करें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. वो क्या कहलाती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है. तो आइए इसको देखिए कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं. इसके लिए हमने एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ली. हमने यहां पर लिया लेट ए बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इसकी हमने एक आइगन वैल्यू ली. लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड कैपिटल एक्स लिया एक इसी लैम्डा आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर एंड कैपिटल एक्स एन आइगन वेक्टर. तो बाय डेफिनेशन क्या बनता है? क्या हो जाता है? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. नाउ you multiply both sides by the matrix A, you get AX is equal to A lambda x. Now by associative property A क्या बन जाएगा आपके पास में? A square x. लैम्डा यहां से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा AX. Again put the value of AX. AX is equal to lambda x. So again here put AX is equal to lambda x. Therefore you get lambda x, and so it becomes lambda square x. Therefore we get a square x is equal to lambda square x. Now since a square is equal to a, therefore replace this a square by a, because this matrix is idempotent matrix. So therefore here AX is equal to lambda square x. Why? Since A is idempotent matrix, implies A square is equal to A. Now again you see AX is equal to lambda x. Therefore AX is equal to lambda x. Therefore put this AX to be lambda x, and this implies lambda x is equal to lambda square x, and this implies you see lambda square minus lambda x is equal to 0, and this implies lambda square minus lambda is equal to 0, since again x is not equal to 0. Why? Because x is an eigenvector, so it is a non-zero vector. Thus we get lambda square minus lambda is equal to 0, and it is lambda minus 1 equal to 0, and this implies lambda equal to 0 or lambda is equal to 1. Therefore we see that lambda has only two values, either 0 or 1. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स A थी उसकी हमने एक आइगन वैल्यू लैम्डा ली, और लैम्डा की केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है, वो या तो 0 या 1. So therefore we conclude that an idempotent matrix can have only an eigenvalue to be 0 or 1.
नाउ वी प्रूव if A is a non-singular matrix, then the eigenvalues of A inverse are the reciprocal of the eigenvalues of A. क्या मतलब है कि हमको प्रूव करना है कि मान लीजिए A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होगा A इनवर्स वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें प्रूव करना है कि यदि A की आइगन वैल्यू कोई भी आइगन वैल्यू लैम्डा है तो A इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी 1/λ होगी। इट मींस A इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो A की आइगन वैल्यूज का ही रेसिप्रोकल्स हैं। यदि A की आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है तो A इनवर्स की आइगन वैल्यूज 1/λ1, 1/λ2 एंड 1/λ3 ये होगी। तो हमको ये प्रूव करना है, तो आइए इसको कैसे प्रूव करते हैं। हमने लेट लैम्डा बी एनी आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। हमारी मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एंड let x be an eigenvector corresponding to eigen value lambda, then by the definition ax is equal to lambda x। ये x क्या बन गया आपके पास में लैम्डा x। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई A इनवर्स। A इनवर्स एग्जिस्ट करता है हमारा, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स कैसी है नॉन सिंगुलर है, तो A इनवर्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपके पास में A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स लैम्डा x। नाउ ये बन जाता है आपके पास A इनवर्स AX इज इक्वल टू लैम्डा, बाहर आ जाएगा लैम्डा A इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज A इनवर्स से क्या हो जाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बन गया IX इज इक्वल टू लैम्डा A इनवर्स x एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन गया आपके पास में A इनवर्स x इज इक्वल टू लैम्डा, इधर आ जाएगा IX इज इक्वल टू, चूंकि IX विल बी इक्वल टू x, लैम्डा से डिवाइड किया तो ये बना 1/λx। अब आप देखते हैं कि आपको यहां पर मिल रही है एक नॉन जीरो, x कैसा वेक्टर है नॉन जीरो, चूंकि यह लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग एक आइगन वेक्टर था तो x कैसा हुआ नॉन जीरो वेक्टर। इस तरह से आप देखते हैं कि x है इस इक्वेशन में नॉन जीरो वेक्टर। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका 1/λ हो गया A इनवर्स की एक आइगन वैल्यू और कैपिटल X है 1/λ के कोरोस्पोंडिंग एक आइगन वेक्टर। दिस इंप्लाइज 1/λ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स। इस तरह से हमने दिखाया कि यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और लैम्डा उसकी एक आइगन वैल्यू है तो 1/λ ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी। एक चीज आप यहां और नोट कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा थी और लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर एक्स था। ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या बनी 1/λ, लेकिन आइगन वेक्टर क्या रहा वो आपका कैपिटल एक्स। तो इस तरह से यदि हम यहां देखें तो आइगन वेक्टर क्या रहे आपके प्रिजर्व रहे, केवल क्या बदली उनकी आइगन वैल्यूज। सिमिलरली इन द सेम पैटर्न हम एक दूसरा अभी एग्जांपल आपके सामने लेते हैं जिसमें यही चीज आपको देखने को मिलेगी। एग्जांपल क्या है आपके पास में, आइए इसमें आप शो कर सकते हो कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है, ए की आइगन वैल्यूज मान लीजिए λ1 λ2
एंड सो ऑन लैम्डा एन है। तो हम यहां शो करेंगे कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज जो होगी वो लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन लैम्डा n स्क्वायर होगी। तो कहने का मतलब हमें शो करना है कि यदि a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी। इसको आप बहुत इजीली देख सकते हैं। इसके लिए हम ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमने ली, एक आइगन वैल्यू उसकी लैम्डा ली, और अब हम दिखाएंगे कि लैम्डा स्क्वायर है ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू। ए लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, मान लीजिए x लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो क्या बन जाता है आपके पास में ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब दोनों ओर आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर हो जाएगा, मैं शॉर्ट में करता हूं, a से मल्टीप्लाई ये इधर हो जाएगा a स्क्वायर एक्स, इधर बन जाएगा आपके पास में a लैम्डा एक्स जो कि अगेन बन जाएगा लैम्डा ए एक्स। अब ए एक्स फिर से किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स के, तो हमने यहां पर रख दिया तो लैम्डा एक्स, और ये क्या बन गया लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से ए स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आया, लैम्डा स्क्वायर एक्स के। अब आप नोट करते हैं, यहां पर ये चीज नोट करते हैं, क्या नोट किया आपने कि ए स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आता है, लैम्डा स्क्वायर एक्स के। एक्स कैसा था, एक्स था आपके पास में आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर फॉर अ मैट्रिक्स ए, तो x कैसा होगा, नॉन जीरो वेक्टर। तो x यहां है नॉन जीरो वेक्टर, तो ये इक्वेशन क्या दर्शाती है कि लैम्डा स्क्वायर हो गई आइगन वैल्यू ए स्क्वायर की, और कैपिटल X हो गया लैम्डा स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो यहां भी देखिए आपने क्या एक चीज देखी कि एक तो आपने ये देखा कि यदि a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी, और आप इसी से ये भी शो कर सकते हैं कि यदि a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a क्यूब की आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा क्यूब होगी। लेकिन एक चीज यहां आपको देखने को मिलती है कि आइगन वेक्टर क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। प्रिजर्व मतलब क्या है कि यदि a की आइगन वैल्यू लैम्डा है, a की आइगन वैल्यू लैम्डा है और लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है, x, a की आइगन वैल्यू आपने क्या ली, लैम्डा, और लैम्डा की आइगन वेक्टर क्या था, x, तो a स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यू क्या बनी, लैम्डा स्क्वायर, और जबकि आइगन वेक्टर क्या रहा, लैम्डा स्क्वायर के लिए भी कैपिटल X। ये चीज आपको यहां नोट करने के लिए मिलती है। तो इस तरह से हम आइगन वैल्यू का बिहेवियर स्टडी करते हैं कि आइगन वैल्यू किस तरह से किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू उस मैट्रिक्स के टाइप पर डिपेंड करती है, कि वो मैट्रिक्स कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस के टाइप पर डिपेंड करती है। इसी तरह से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए दिखा सकते हैं कि आइगन वैल्यू जो है वो प्योरली रियल होती है, प्योरली इमेजिनरी होती है, और यूनिट मॉडुलस की होती है। तो इसमें इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।